Stay safe and stay healthy. We are most welcoming you all for the Passion for Economics channel, macroeconomics and national income. We will be going to learn for the income method. Don't worry, don't take a stress. मैंने आपसे promise किया था कि easiest way में आपको समझाने की कोशिश करूँगी. So here is the another video for the income method. Already we have looked after the value added method. Now we are looking after towards a income method. So like and subscribe. Don't forget our channel Passion for Economics. Who have economics doubts, please come and visit our channel. We will be going to make you helpful for that. So easy to learn for fun with economics. So here we are going further. Methods to calculate the national income. So when we talk about it, already we have discussed about the value added method. We have going to discuss about income method, and next video will be for the expenditure method. So there are the three methods especially which we have already talked in the value added method also. So looking after for the national income by the income method, we need to calculate in national income from which method? By the income method. When we talk about the income method, there is actually income method is generated from the factor of production like wages, profit, rent, interest are all sum up and they calculated as a national income. This is also known as a distributed share method, and it is also known as a factor payment method. Distributed share method and factor payment method, it is another name of this particular income method. So when we talk about the first step to calculate here is the NDPFC, which is also known as a domestic income. So for this the formula is compensation of employee. Okay, next one is a operating surplus, and the next one is a mixed income of self-employed. Only these three steps are required. One is compensation of employee, another is a operating surplus, another is a mixed income of self-employed. तो याद कर लीजिए कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का पहला स्टेप एनडीपीएफसी है, और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको तीन चीजें चाहिए. पहली सीओई, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस और तीसरा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. एक एक करके समझते हैं कि ये चीज है क्या. अगर हम इनकम मेथड की बात करें टू कैलकुलेट अ नेशनल इनकम, हमें सबसे पहले एनडीपीएफसी चाहिए, जिसको मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम से बनता है. तो जब हम सीओई की बात करते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो यहाँ पर ये जो एम्प्लॉय होता है वो एक ऐसा पर्सन होता है, एक ऐसा मेंबर होता है जो कि वर्क कर रहा होता है. ठीक है, ही इज अ वर्कर, ही इज अ एम्प्लॉय. तो जो एम्प्लॉय होता है उसको जो एम्प्लॉयर होता है, बॉस जो होता है ना, वो बॉस क्या क्या देता है अपने एम्प्लॉय को. जो बॉस होगा वो अपने एम्प्लॉय को क्या क्या देगा, ये चीज आपको दिमाग में रखना है. वो आपको क्या दे सकता है, एज अ कैश भी दे सकता है. ठीक है, इट कैन गिव यू द कैश. वेजेस एंड सैलरी जिसको हम बोल सकते हैं, है ना, वेजेस एंड सैलरी, बोनस, डियरनेस अलाउंसेस, कमीशन, ये सब चीज़ें वो कैश में देता है. तो ये सब चीज़ें आपकी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आएगी. ठीक है, एम्प्लॉय हु इज़ वर्किंग अंडर सम कंपनी, दैट इज एम्प्लॉय. और एम्प्लॉयर बॉस होता है, जिसकी कंपनी होती है, जो ओनर होता है. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो कुछ भी एम्प्लॉय को मिलता है एम्प्लॉयर के द्वारा, दैट इज ऑल कम्स अंडर द सीओई. First point which I already told you is a cash. ठीक है, another point you can see whatever we are getting it in the kind. ठीक है, आपको जो भी चीज काइंड में मिल रही है तो वो आपकी क्या कहलाएगी यहाँ पर, दिस विल बी ऑल्सो कमिंग अंडर द सीओई. सीओई के अंदर जैसे कि बेनिफिट्स मिलते हैं कि कई लोगों को घर में रेंट फ्री मिल जाता है. ठीक है, घर का फ्री कार मिलती है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, बच्चों के लिए एजुकेशन फैसिलिटी मिलती है. तो ये सब जो बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि कैश में नहीं होते बट काइंड में होते हैं, तो वो सब चीज़ें भी क्या कहलाती हैं, आपकी सीओई कहलाती हैं. अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं. इसी में थर्ड पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर हम इसकी बात करें तो इसमें थर्ड पॉइंट आता है अपना एम्प्लॉयर सिक्योरिटी. जब हम यहाँ पर एम्प्लॉयर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इस एम्प्लॉयर सिक्योरिटी में आपको ये देखना जरूरी हो जाता है कि ये एम्प्लॉयर सिक्योरिटी, जैसे पीएफ हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, वो एम्प्लॉय दे रहा है कि एम्प्लॉयर दे रहा है. अगर ये प्रो सिक्योरिटी जो है, सोशल सिक्योरिटी जो है, अगर वो ये पोर्शन जो पार्ट होता है वो बॉस का पार्ट है, तो वो अपना यहाँ पर नेशनल इनकम में ऐड होगा. आप याद रखिएगा, एम्प्लॉयर का पार्ट ऐड होता है नेशनल इनकम में, बट एम्प्लॉय का पार्ट ऐड नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल टीचर्स. ठीक है, टीचर्स स्कूल में वर्क करते हैं, तो जो ओनर होता है, ओनर का जो पीएफ का पार्ट होता है वो ऐड होता
होता है, जो एम्प्लॉय का पार्ट होता है वो ऐड नहीं होता। तो आप लोगों को स्टूडेंट्स ये आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी में डालता है, बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज होते हो। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है कि अगर कोई भी सोशल सिक्योरिटी अगर हमको पढ़ाई करनी है तो सोशल सिक्योरिटी का जितना भी अप्रूव फंड होता है वो सब सिर्फ और सिर्फ बॉस का मतलब एम्प्लॉयर का ऐड होता है। भैया बॉस है वो, है ना, हमारी तो सैलरी ऑलरेडी हमको मिलती है, वो तो ऑलरेडी नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है, तो उसका पार्ट काट के हम क्या बताएंगे। तो सिर्फ पीएफ का किसका ऐड होता है, एम्प्लॉयर का ऐड होता है, एम्प्लॉय का ऐड नहीं होता है। तो जितनी भी सोशल सिक्योरिटी है वो हम एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन लेंगे, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे। तो सीओई को अगर हम सम अप करें तो ये किस चीज में आता है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, इन काइंड एंड सोशल सिक्योरिटी बाय कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर्स। ये तीनों चीजों से अपना सीओई बनता है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर भाई नेक्स्ट पे आते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस बनता है अपना रेंट से, ठीक है, जो रेंटल आप देते हो, इंटरेस्ट जो पे करते हो, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी, ये चार चीजों से आपका क्या बनता है, ऑपरेटिंग सरप्लस बनता है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट जो है वो नेशनल इनकम का पार्ट होता है एज अ ओनरशिप ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। इंटरेस्ट जो होता है इट रिफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड फॉर लैंडिंग द फंड टू द प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट इज अ रिवार्ड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, सो दिस इज अ कंट्रीब्यूशन वी हैव टू टेक इट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। पर जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट अगेन बहुत डिवाइडेड होता है इनटू द वेरियस पोर्शन। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला अगर अपन देखेंगे तो क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब क्या हुआ, इट इज अ डायरेक्ट टैक्स पेड बाय द एंटरप्राइजेस टू द गवर्नमेंट बाय द प्रॉफिट अर्न। इट इज ऑल्सो नोन एज अ प्रॉफिट टैक्स एंड बिजनेस टैक्स। इसको हम प्रॉफिट टैक्स भी बोलते हैं और बिजनेस टैक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट पे जो टैक्स लगता है दैट इज कॉल्ड एज योर कॉर्पोरेट टैक्स। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर डिविडेंड की, तो इट रिफर्स टू द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज पेड टू द शेयर होल्डर इन द रेशियो ऑफ देयर शेयर होल्डिंग। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं रिटेन अर्निंग की। इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज ऑल्सो कैप्ट एज रिजर्व टू कीप अनएक्सपेक्टेड कॉन्टीजेंसी। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हो गई बिजनेस के लिए तो उसको एक्सपेंड करने के लिए जो हम प्रॉफिट का पार्ट रखते हैं, जिसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, वी कैन से एज अ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट के अंदर आएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि अगर प्रॉफिट डायरेक्टली दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली यहाँ पर ऐड कर देंगे ऑपरेटिंग सरप्लस में। अगर उसके पार्ट दिए हुए हैं डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन अर्निंग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो इन सबको प्लस करके हमें प्रॉफिट को पहले निकालना होगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस स्लाइड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मिक्स्ड इनकम आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसके लिए कोई भी इसके सब पार्ट्स नहीं है, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो माय डियर, नेशनल इनकम निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी निकालने के लिए क्या होता है, सीओई। सीओई को आपको क्या करना है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, जितना भी कैश में मिलता है, जो काइंड में मिलता है, और सोशल सिक्योरिटी से बॉस का इंक्लूड होगा, एम्प्लॉयर का इंक्लूड होगा, एम्प्लॉय का ऐड नहीं होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए हमको जो चार इंग्रेडिएंट चाहिए पड़ते हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। प्रॉफिट जो है वो उसके अलग पार्ट होता है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट दिया रहता है क्वेश्चन में और ये सब चीजें भी दी रहती है तो सिर्फ हम प्रॉफिट को ऐड करेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग को नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉफिट में इंक्लूडेड होता है। सो दिस इज यू हैव टू टेक केयर very importantly. Now coming to the portion here is a national income part, ठीक है। So already we have learned about the value added method. The same thing is followed in your national income also, ठीक है। Whatever we have learned, the national income we are calculating it. So this is by the income method also we will be going to calculate it. The same way it is followed in a expenditure method. So all three methods we will be going to see that particular portion. This step is for all three. Value added method also, expenditure method also, income method also, for calculating a national income. So here it is a NNPFC is equal to NDPFC plus NFIA. So national is equal to domestic क्या होता है प्लस NFIA होता है, ठीक है। NFIA क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि हमारे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप प्लीज़ उसको देखिएगा कि कैसे कन्वर्ट होते हैं। उसमें पूरे फॉर्मूलेस को ब्रीफली समझाया गया है, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेशनल को डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें NFIA का यूज़ करना पड़ता है। NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड।
अब हम फटाफट नॉर्मल क्वेश्चंस के बेस पे देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ अपन को यहाँ पर एनडीपीएफसी सॉल्व करना है। एनडीपीएफसी का सीओई ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्स्ड इनकम, सीओई का फॉर्मूला आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, ऑपरेटिंग सरप्लस का बता दिया, ये मिक्स्ड इनकम आपकी डायरेक्टली दी रहेगी। ठीक है, मिक्स्ड इनकम मतलब ऑल ओन अकाउंट वर्कर के जितनी और इनकम होगी। और एनएनपीएफसी जो है, जो कि बेसिकली नेशनल इनकम कहलाता है, उसको हमको कन्वर्ट करना है अपने फर्स्ट स्टेप से एनडीपीएफसी से। तो हमको पता है कि एनपी इज इक्वल टू डीपी जो होता है वो आपको क्या कहलाएगा, प्लस एनएफआईए कहलाएगा। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप हम लेंगे। फर्स्ट स्टेप यहाँ पर देखेंगे अपन क्वेश्चन में कि सेल्स दिया हुआ है, ठीक है, प्लस हमारे साथ उसके साथ क्या दिया हुआ है, इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया। तो पहले हमें वैल्यू एडिट जो मेथड है हमारा, उसको हमने जो प्रीवियस वीडियो में आप वैल्यू एडिट मेथड का देख सकते हैं। अगर आपको क्लियर नहीं है उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें इनकम मेथड के। तो इसमें हम पहले देखेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट, जिसकी सेल्स अकेले दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक नहीं दिया है, तो होल क्वांटिटी हम सेल को ही अपना वैल्यू ऑफ आउटपुट मान के 4000 करोड़ रुपए लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है जीडीपीएमपी, जिसको हम वैल्यू एडिट भी बोलते हैं। तो उसके लिए हमको वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन करना होगा। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन अपन को 600 दिया हुआ है, तो हम उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 3400 करोड़ रुपए आएगा। उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे कि एनडीपीएफसी में, क्योंकि हमको बेसिकली एनडीपीएफसी से ही ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने को मिलेगा। तो हम इसको एनडीपीएफसी में कन्वर्ट करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसका वीडियो मैंने अलग से सेपरेटली बनाया है कन्वर्ट करने का, जो कि आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। नेटो क्रॉस को जब हम करते हैं कन्वर्ट तो माइनस डेप्रिसिएशन होता है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट को तो कन्वर्ट करना नहीं है, सेम ही है। एफसी को एनपी में कन्वर्ट करने के लिए हमें माइनस एनआईटी की जरूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हो कि कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल आपका डेप्रिसिएशन कहलाता है, जो कि ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, 200 रुपीज दिया हुआ है, तो वो हमने ले लिया यहाँ पे। प्लस एनआईटी आप देख सकते हो डायरेक्टली दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 500 रुपीज, वो वैल्यू हमने ले ली है, तो ये 2700 कहलाएगा। तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर एनडीपीएफसी हमारा कैलकुलेट हो गया 2700 करोड़, तो वो हम वैल्यू यहाँ रखेंगे। सीओई आप देख सकते हो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में डायरेक्टली दिया रहता है, तो 800 रुपीज डायरेक्टली दिया हुआ है। ऑपरेटिंग सरप्लस हमको निकालना है, और मिक्स्ड इनकम भी आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि 400 रुपीज दिया हुआ है, उसको हमने ऐड करना है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारा 1500 करोड़ रुपए यहाँ पर आपका क्या निकलता है, ऑपरेटिंग सरप्लस निकलता है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस में क्यूरी है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको बता सकते हैं। और अगर समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना जरूरी है। आप मुझे समझिए, मैं आपको समझती हूँ, मैं आपके लिए इजीएस्ट वे में न्यूमेरिकल ला रही हूँ, तो आप भी लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम यहाँ पर आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो अगर हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं तो यहाँ पर देखिए फिर से आपको फॉर्मूला इजीएस्ट वे में मैंने लिख के दे दिया है। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट किसके अंदर आता है भाई, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आता है। और ऑपरेटिंग सरप्लस किसके अंदर आता है, एनडीपीएफसी के अंदर आता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एनडीपीएफसी। कैसे निकालेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। बट यहाँ पर जीडीपीएमपी दिया हुआ है, ठीक है, जीडीपीएमपी यहाँ पर 17,500 दिया हुआ है। तो हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट किस में करेंगे, हम एनएनपी एनडीपीएफसी में कन्वर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सबसे पहले एनडीपीएफसी को लिया है, जो कि जीडीपीएमपी में कन्वर्ट किया है। तो नेट इज इक्वल टू ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे माइनस डेप्रिसिएशन चाहिए, जो कि डेप्रिसिएशन मेरा कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि डेप्रिसिएशन डायरेक्टली नहीं दिया जाता है, इसका वर्ड यूज किया जाता है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जो कि 700 रुपीज है, माइनस एनआईटी दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, 1500 माइनस 700 ये मैंने लिया है यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, जो कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो उसको हमने कैलकुलेट किया है, 16,000 करोड़ आंसर आया है। फिर उसके बाद हम एनडीपीएफसी को लेंगे डायरेक्टली, उसमें सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम लेंगे। तो यहाँ पर 1600, यस आप डायरेक्टली भी कर सकते हो अगर आपको कैलकुलेशन ईजी पड़ता है तो। और इसकी वैल्यू हमको डायरेक्टली दी हुई है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आप देख सकते हैं यहाँ पर 9300 दिया हुआ है। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पर 3500 दिया हुआ है। तो कैलकुलेट करने पे 3200 आपका क्या आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। जब अपन को ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करना है तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी। तो यहाँ पर अपन ऑपरेटिंग सरप्लस ऑलरेडी सेकंड स्टेप में कैलकुलेट कर लिए 3200। रेंट आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है 800, ठीक है, और यहाँ पर आपको प्रॉफिट भी दिया हुआ है जो कि कितना है 1100। तो इसको हम प्लस करके इससे माइनस करेंगे तो 1300 करोड़ आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे। अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे प्लीज लिखिएगा और बताइएगा मुझे, सो दैट कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। अदरवाइज हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आपका क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस अपन को उसमें कैलकुलेट करना है और डोमेस्टिक इनकम। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो अब हम आते हैं, टेंशन नहीं लेने का, मैंने आपको पहले भी बोला है, सिर्फ 2 स्टेप है इसमें। एनडीपीएफसी कैलकुलेट करना है जिसमें सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम दिया है। दूसरा कन्वर्ट करने का है नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनएफआई। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, मेरा प्रीवियस वीडियो जो कि न्यूमेरिकल इनकम के बेसिक पे है वो आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको आपका नेशनल इनकम बहुत ईजी होने वाला है। तो अब यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है हमको भाई। तो ऑपरेटिंग सरप्लस हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर देखिए रेंट और इंटरेस्ट दिया हुआ है 800 रुपीज़, वो हम लेंगे, प्लस अपना क्या बोलते हैं प्रॉफिट अपन को तोड़ा हुआ है। मैंने आपको पहले ही समझाया कि प्रॉफिट का फॉर्मूला अलग होता है। तो प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स जो कि मैंने 460 लिया है, ठीक है, डिविडेंड जो कि मैंने 940 लिया है, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो कि मैंने अपना 300 लिया है। तीनों को सबको प्लस करके मेरा ऑपरेटिंग सरप्लस 2500 करोड़ आया। अब इसको मुझे निकालना क्या है, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपीएफसी। तो एनडीपीएफसी का फॉर्मूला आप देख सकते हैं क्या है, सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो मैंने वो फॉर्मूला लिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना दिया हुआ है, 2000। ऑपरेटिंग सरप्लस आप देख सकते हैं कि जो हमने कैलकुलेट ऑलरेडी किया है 2500। और मिक्स्ड इनकम आप देखिए लास्ट में ये दिया हुआ है यहाँ पर 200 रुपीज़। तो ये 200 रुपीज़ मैंने यहाँ पर लिया है। तो 4700 हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पर एनडीपीएफसी आ जाता है। होप अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आई विल हेल्प यू आउट एंड प्लीज़ ट्राई टू डू इट एज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप लोग इसको प्लीज़ ध्यान से पढ़ो क्योंकि ये इजी है। तो हमने इनकम मेथड पढ़ा है, इनकम मेथड जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से बनता है, जिसमें कि हमें सिर्फ 2 स्टेप फॉलो करना है, एक एनडीपीएफसी दूसरा एनएनपीएफसी। एनडीपीएफसी के 3 इंग्रेडिएंट होते हैं, सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या होता है, एनएनपीएफसी, जिसको नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हम प्लस एनएफआईए करते हैं। एनएफआईए का मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, एंजॉय प्रैक्टिस। अगर आपको और इसके वीडियोस चाहिए और क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बताइएगा, वी विल गो फॉर इट। थैंक यू।